students, welcome to Science GV channel. So today we are going to solve question paper of half yearly examination of 2023. So in this video we are going to discuss MCQs and very short answers type questions, and there will be two more videos of this question paper, and in that we will discuss the whole question paper. So let's start. So these are general instructions. This question paper consists of 3 sections A, B, C. There are 30 questions. Section A contains 1 marks question, very short answer, and 2 associated reason type questions are also there. Question number 13, 14 are case based question, and section B 15 to 24, section C 25 to 30, they are long answer type questions. So let's start with objective type questions. So in this first question is linear magnification M produced by a rear view fitted mirror in vehicles. So you know that rear view mirror fitted in vehicles is convex mirror, and the image found by convex mirror is always virtual, erect and diminished size. So diminished means magnification is always less than 1. So here option number A is the correct option. Now question number 2. Student, first try yourself to answer the question, then see the solution of that question. Now question number 2, which color suffer least deviation on passing through a prism? तो इसमें कहा गया है कि कौन सा कलर लीस्ट डेविएशन शो करेगा अगर आप प्रिज्म के थ्रू पास करते हो. सो अगर आप एक प्रिज्म के थ्रू पास करते हो किसी भी लाइट को, तो आपको पता है ये लाइट, अगर ये लाइट यहाँ से पास हो रही है तो ये सीधी जानी चाहिए, बट ये डेविएट होती है. और कितने कलर में डेविएट होती है? विबग्योर. और आपको पता है सबसे ज़्यादा डेविएट होती है VIBGYOR. तो लीस्ट डेविएटेड कलर इज रेड एंड मोस्ट डेविएटेड कलर इज violet. So here is least deviated color. So option number A, red, is the correct answer. Question number 3, the danger signal installed at top of a tall building are red in color. These can be seen from a distance because among all other colors the red light. So red light is scattered most, is scattered least, is absorbed the most by smoke or fog, or moves faster in the air. So it is scattered the least by smoke and fog. That's why we use red color signals as danger signals. And why red scattered least? Because it has longest wavelength, lambda. And there is a choice in this question. The question is focal length of eye lens increases when eye muscles. The focal length of eye lens increases when eye muscles. When eye lens focal length increase. So you know there is like, if there are two lenses, if there is thin lens or if there is thick lens. So this lens has lower focal length, this lens has higher focal length. So if a lens is thin, then it has higher focal length. So to have higher focal length, lens must relax. So option number A is correct answer. When eye muscles are relaxed and lens become thinner. Okay, now question number 4. In this figure given below, the structure marked are associated with human kidney. X is given in the diagram. So it is the diagram of human kidney. You have to answer the X, Y, Z. So in this diagram X, Y, Z. So this is vena cava and this is aorta. The X is the duct that carrying the fluid from kidney to vena cava. So X is renal vein. Okay, X is renal vein. तो इसमें जो डक्ट आपका वेना कवा तक पहुंचाते हैं दैट इज रीनल वेन, और जो एओर्टा से आते हैं दैट इज रीनल आर्टरी. ये आप क्लियर कर सकते हो. नेक्स्ट डायग्राम आप देखो, क्वेश्चन नंबर 5.
सो क्वेश्चन नंबर 5 एक मोमेंट्स कैप्सूल का आपको दिया है। व्हाट इज द पार्ट सी, पार्ट सी के बारे में आपको बताना है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। सो इन दिस एफरेंट एट्रियोल, इफरेंट एट्रियोल, ग्लोमेरुलस एंड कलेक्टिंग डक्ट। तो आपको पता है ये एफ्रिएंट और इफरेंट ये होते हैं। ये जो पार्ट है दैट इज मोमेंट्स कैप्सूल, और ये जो पार्ट है ऑप्शन नंबर सी दैट इज ग्लोमेरुलस। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर पार्ट सी रिप्रेजेंट्स ग्लोमेरुलस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका नेफ्रॉन के डायग्राम एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम। यहाँ से क्वेश्चंस बहुत आते हैं, सो प्लीज़ डू इट केयरफुली। इसको आपको अच्छे से करके जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो इन नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्टर अशोक एज्यूम दैट टाइम टेकन फॉर 10 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 10 centimeter cube of carbon dioxide to be formed from a reaction between equal volume of acid solution and 1 gram calcium carbonate is affected by the pH of acid solution. Mr. Rajesh tested his hypothesis and represented his result as shown in this. What will happen at pH 6.5? तो अगर आप देखो यहाँ पर pH 6.5 पे कोई रिएक्शन शो हो रहा है? बिल्कुल नहीं शो हो रहा है। यहाँ पे ग्राफ सेचुरेट हो गई है, सीधी आ गई है ग्राफ। सो एट pH 6.5 नो रिएक्शन विल अकर। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ विच प्लांट हार्मोन प्रमोट्स सेल डिवीजन? कौन सा प्लांट हार्मोन सेल डिवीजन को प्रमोट करता है? तो ये आपका चैप्टर 7 से रिलेटेड है, जिसमें इसका आंसर हो जाएगा आपका साइटोकाइनिन, ऑप्शन नंबर सी। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट आंसर। और इसमें आपको हर एक हार्मोन्स के फंक्शंस क्लियर होनी चाहिए। एक न एक हार्मोन आपके एग्जाम में ज़रूर आएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ और आर ट्रू अबाउट रेस्पिरेशन? इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है अबाउट रेस्पिरेशन? ड्यूरिंग इनहेलेशन रिब्स मूव्स इनवर्ड्स एंड डायफ्राम इज रेज्ड। इन एल्वेलाई एक्सचेंज ऑफ गैस टेक्स प्लेस। ऑक्सीजन फ्रॉम एल्वेलाई एयर डिफ्यूजेज इनटू द ब्लड and carbon dioxide from the blood enters into the alveoli air sac. Hemoglobin has greater affinity for sulfur dioxide than oxygen. Alveoli help in increasing surface area for exchange of gases. तो ऑप्शन नंबर सेकेंड भी पूरी तरह से करेक्ट है। ऑप्शन नंबर 4 इज ऑल्सो करेक्ट। सो सेकेंड एंड फोर्थ, सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट ट्राई योरसेल्फ देन सी द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, these are assertion reason type questions. So in these question, if assertion or reason both are correct and reason is the correct explanation, then your answer will be option A. If assertion or reason are true but reason is not the correct explanation of the assertion, then answer will be B. If assertion is true but reason is false, then your answer will be C. And if both assertion and reason are false, your answer will be D. So in question number 8, the process of dissolving an acid in water, the process of dissolving acid in water is hyloexothermic. So it is true. A large amount of heat is absorbed in endothermic reaction. So it is also true. In endothermic reaction heat is absorbed, and in exothermic reaction heat is evolved. But there is no link between these two reactions, these two statements. So both are true but reason is the not correct explanation. So here our answer will be option number B. Now question number 9, the main organ of human excretory system are kidney. Yes, very good, this is correct. Now kidney performs the function of removing excess water and nitrogenous waste from the body. So both assertion and reason are true. So our option is option number A. So these are 9 multiple choice questions. Now let's move to some very short 1 mark questions. Like question number 10, what should be the position of object when concave mirror is to be used as a shaving mirror? So in shaving mirror, if concave mirror is used, what should be the position of object? So when we use shaving mirror, we want our image should be upright or erect and larger.
so only one position when object placed between P and F, then image is formed erect and larger. So between P and F, here answer will be between P and F. Now in torch producing parallel beam of light, in torch producing parallel beam of light, so parallel beam of light, when an object placed at focus, it produces parallel beam. So at F, here object should be placed at F. Okay. Now question number 11, given below contains an organic acid A and B is a component of fertilizer. Identify the strength of chemical substance on the basis of pH. So आपको इसमें बताना है किसका pH कम होगा, किसका pH ज़्यादा है और केमिकल सब्सटेंस क्या होगा. तो ऑप्शन नंबर ए इज़ एन ऑर्गेनिक एसिड, तो इसका pH क्या होगा आपका, इसका pH शुड बी लेस देन 7 एंड अमोनिया इट इज़ अ बेस, सो हेयर pH इज़ ग्रेटर देन 7. सो आपको यहाँ पर ये एक्सप्लेन करना था. ओके. नाउ आपको पता है मिथेनोइक, ये जो आंट है उसके अंदर कौन सा एसिड होता है, दैट एसिड इज़ नोन एज फॉर्मिक एसिड और मिथेनोइक एसिड. ओके, मिथेनोइक एसिड और फॉर्मिक एसिड, ये आपको क्लियर होना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई द वॉल्स ऑफ ट्रैकिया आर सपोर्टेड बाय कार्टिलेजिनियस रिंग्स. सो ट्राई टू आंसर दिस इन कमेंट बॉक्स एंड देन आई विल टेल द आंसर. Do comment your answer. So why the walls of trachea are supported by cartilaginous rings? Because when air is not blowing through that walls, so it will not collapse if it is supported by cartilaginous rings. So it is to support the trachea and to prevent the collapse of trachea when there is no flow of air happening from walls of trachea. So now question number 13. So this is a case based question. In this there are 4 very short questions. So let's read the question. Thousands of chemical reactions takes place during digestion. Enzyme amylase present in saliva breaks down sugars and carbohydrates present in food to form simpler forms which the body can absorb. Hydrochloric acid in the stomach reacts with food to further break it down. So during digestion, protein breaks into amino acids, fats break into fatty acid and glycerol and carbohydrates breaks into simple sugar. So इसमें कहा गया आपको कि डाइजेशन के दौरान काफ़ी केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिसमें अमाइलेज एंजाइम जो प्रेजेंट होता है सलाइवा में वो ब्रेक डाउन कर देता है शुगर्स और कार्बोहाइड्रेट्स को सिंपलर फॉर्म में, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो स्टमक में प्रेजेंट है वो फूड को फर्दर ब्रेक डाउन कर देता है. तो डाइजेशन के ड्यूरिंग प्रोटीन ब्रेक डाउन हो जाता है एमिनो एसिड्स में, फैट्स ब्रेक हो जाता है फैटी एसिड्स में एंड ग्लिसरॉल में, और कार्बोहाइड्रेट सिंपल शुगर्स में ब्रेक्स हो जाते हैं. तो आपको बताना है नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन व्हेन द क्विक लाइम कंबाइंस विथ वाटर. अब क्विक लाइम आपको पता है क्या होता है, इसका आंसर आप करने की कोशिश करो क्या होगा, ये किस टाइप का रिएक्शन होगा, ये चैप्टर नंबर 1 से आया है, किस टाइप का रिएक्शन है. सो क्विक लाइम क्या होता है आपका, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, जिसे हम क्विक लाइम कहते हैं. जब इसको हम वाटर के साथ कंबाइन करते हैं तब क्या बनता है, एक बेस बन जाता है, दैट इज़ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनने के साथ साथ इसमें से बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट भी निकलती है. सो इट इज़ अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड इट इज़ एन एक्सोथर्मिक कॉम्बिनेशन रिएक्शन. नाउ व्हाट इज़ द नेम ऑफ कलर ऑफ द केमिकल कंपाउंड व्हेन कॉपर पाउडर इज़ हीटेड. कि जो कॉपर पाउडर को जब आप हीट करते हो तो क्या बनता है और उसका कलर क्या होगा. तो आपको पता है जब कॉपर पाउडर को व्हेन यू हीट, सो कॉपर व्हेन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन it convert into copper oxide and this copper oxide is black in color. So our answer will be name of the chemical compound copper oxide and color is black. Third question, mention 2 observation when ferrous sulfate crystals are heated in china dish.
सो फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स को जब आप हीट करते हो तो फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स आर ग्रीन इन कलर। ओके, तो फेरस सल्फेट को जब आप हीट करते हो चाइना डिश में तो उसमें से फेरिक ऑक्साइड बन जाता है Fe2O3 और इसमें सल्फ़र डाइऑक्साइड एंड सल्फ़र ट्राइऑक्साइड गैस रिलीज़ होती है। तो ये दो ऑब्जर्वेशंस होते हैं। नेक्स्ट, अ सॉल्यूशन ऑफ, तो इसका जो ग्रीन कलर है वो ग्रीन से स्लाइटली ब्राउनिश कलर में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट है अ सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड व्हेन मिक्स्ड विथ सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। पोटेशियम क्लोराइड मिक्स्ड विथ सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन and insoluble white substance is formed. Write the chemical reaction involved. So पोटेशियम क्लोराइड क्या होता है आपका KCl, एंड जब इसको आप सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करते हो AgNO3 तो ये क्या बन जाता है पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 एंड प्लस सिल्वर क्लोराइड एंड सिल्वर क्लोराइड। और सिल्वर क्लोराइड आपका किस रंग का होता है, ये आपका सिल्वर क्लोराइड या AgCl, और AgCl आपका किस कलर का होता है, सो इट इज़ ग्रे इन कलर। ठीक है, सो ये ग्रे कलर का होता है AgCl। ओके, सो इसमें जो AgCl बनता है वो आपका किस कलर का होता है, वाइट कलर का प्रेसिपिटेट बन जाता है। और दिस रिएक्शन इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, ग्रे तब होता है जब AgCl को आप सनलाइट के प्रेजेंस में रखते हो और तब वो Ag और Cl अलग अलग हो जाता है, तब वो ग्रे कलर में कन्वर्ट हो जाता है। बट AgCl का प्रेसिपिटेट वाइट कलर का होता है, आप ध्यान रखना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। Hormones are chemical messengers secreted in very small amount by specialized tissues called ductless glands. So they act on target tissue organs and usually from their source. Hormones are produced in the endocrine glands. Hormones is mainly composed of proteins. Hormone assist in the nervous system in control and coordination. Nerves do not react with every nook and corner and hence hormones are needed to affect control coordination. This part, unlike animals, plants do not have a nervous system. Plant use chemical means to control coordination. Many plant hormones are responsible for various kind of movements in the plant. Movements in plants can be divided into two main types, tropic and nestic movements. So ये तो आपका वो था, इसको आप क्वेश्चंस ध्यान देते हैं। लो सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स कॉज विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज। अगर ग्रोथ हार्मोन का लो सिक्रीशन होगा तो कौन सा डिजीज होगा, तो डॉर्फिज्म, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है रूट ऑफ द प्लांट्स आर। पहले आप इसका आंसर करो, चारों ऑप्शन में कमेंट में लिखो, फिर आप आंसर चेक करना। रूट्स ऑफ प्लांट आर पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, नेगेटिवली जियोट्रॉपिक, पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक और नन ऑफ दिस। तो रूट्स ऑफ प्लांट क्या होते हैं, पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, क्योंकि जियो का मतलब होता है अर्थ की तरफ अर्थ अपनी तरफ खींचता है और ये अर्थ की तरफ ही ग्रोथ करते हैं, दैट इज पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग एंडोक्राइन ग्लैंड्स इज अनपेयर्ड। अनपेयर्ड कौन से होते हैं, एड्रिनल, टेस्टस, पिट्यूटरी, ओवेरी। तो आपको पता है, इसमें कमेंट बॉक्स में लिखो सबसे पहले क्या होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी का। तो चलो अब देखते हैं इसका आंसर। एड्रिनल ग्लैंड्स आपको पता है ये भी दो होते हैं, टेस्टस भी दो होते हैं, ओवेरी भी फीमेल्स में दो होती हैं, तो पिट्यूटरी ग्लैंड ही सिंगल होता है, तो दैट इज अनपेयर्ड। ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर डी, विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट थायरोक्सिन। आयरन इज एसेंशियल फॉर सिंथेसिस ऑफ थायरोक्सिन. It regulates carbohydrates, protein and fat metabolism. Thyroid glands requires iodine for synthesis of thyroxine. Thyroxine is called thyroid hormone. So option number, which option is not true? Comment in the answer in the comment box. So option number 2, 3 and 4 are correct. So which is not correct? So iron is essential for synthesis of thyroxine. It is wrong. Iodine is essential, that is option number third. So iron is not essential for synthesis of thyroxine. Option number D is correct answer. So
इन दिस पार्ट वी हैव डन ऑल वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। इसमें हमने सारे शॉर्ट आंसर्स और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कर लिए। अब इससे रिलेटेड बाकी क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और सेकंड पार्ट, अगर आपको सेकंड पार्ट के बारे में देखना है तो सेकंड पार्ट भी अपलोड हो जाएगा। सेकंड पार्ट के क्वेश्चंस आप देख सकते हो और इसके आप किस तरह से आंसर्स करना है वो हम नेक्स्ट पार्ट में, अगर आप कमेंट बॉक्स में लिखते हो, उसको भी हम आंसर करके ले आएंगे। जैसे क्वेश्चन है, आप उसको क्वेश्चन को एक बार देख लो सारे और फिर उसको आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, डिफाइन स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट व्हेन द रे ऑफ लाइट। इसको आप स्क्रीनशॉट लेके और इसको आप सॉल्व करो, और अगर कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखो और उस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करवा दूंगा। ले लिया आपने। नेक्स्ट अब देखो क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19, इसको सभी की आप स्क्रीनशॉट लेके इसको सॉल्व करो। सॉल्व करके अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखो और फिर इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। और कौन कौन चाहता है इस पूरे को सॉल्व करे, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखो कि सर ये क्वेश्चन सॉल्व करवा दो। ये है क्वेश्चन नंबर 20, 21, ये सारे 3 मार्क्स क्वेश्चंस हैं। इसके भी स्क्रीनशॉट लेके आप कर सकते हो सॉल्व। फिर है क्वेश्चन नंबर 22, 23, ये सारे आप इसको सॉल्व करो। इसको और नेक्स्ट पार्ट हम इसका लेके आएंगे जिसमें पार्ट बी के जितने भी क्वेश्चंस है उसका किस तरह से आंसर करना है वो आपको सिखाया जाएगा। ये है क्वेश्चन नंबर 24, अब देख लो। नाउ लास्ट सेक्शन सी, सब्जेक्टिव, इसमें 5 मार्क्स के क्वेश्चंस है। आप क्वेश्चंस नोट कर लो, इसको सॉल्व करो। कोई डाउट आएगा इसको हम सॉल्व करवाएंगे। क्वेश्चन नंबर 26, 27, नाउ क्वेश्चन नंबर 28 एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 29 एंड दिस इज लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। सो टोटल 30 क्वेश्चंस इस एग्ज़ाम पेपर में है और 80 मार्क्स का ये पेपर है आपका, जिसमें 3 सेक्शन है। एक सेक्शन हमने सॉल्व कर लिया, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी की अगर सेपरेट वीडियो आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप लिखो कि आपको इसकी वीडियोस के आंसर्स के किस तरह से लिखने हैं, उसको हम सॉल्व करके ले आएंगे। और फर्स्ट पार्ट आपने देख लिया है। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो लाइक करो, कमेंट करो और सबसे पहले सॉल्व करके आप कमेंट करो। जो भी क्वेश्चंस आप देखो पहले उसको कमेंट करो, फिर देखो उसका क्या आंसर आता है। और आप अपनी तैयारी इससे चेक कर सकते हो कि आपकी तैयारी कितनी है। और सभी लोग आज जितने भी पार्ट ए के जितने क्वेश्चंस हैं उसमें कितना स्कोर आया है आपका, उसको कमेंट कर सकते हो। पार्ट ए कितने मार्क्स का है, अभी हमने देखा था इंस्ट्रक्शंस में पार्ट ए आपका, तो पार्ट ए आपका 12 वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस थे मल्टीपल चॉइस, जो ये आपके 12 और केस बेस्ड में भी आपके वेरी शॉर्ट ही थे, तो ये 2 × 4 8 मार्क्स थे। तो टोटल 20 मार्क्स का आपका आज सॉल्व हुआ है। इसमें से आप कमेंट करो कि आपके आउट ऑफ 20 कितने मार्क्स हैं। अगर आपका स्कोर 15+ नहीं है तो आपको अपनी तैयारियां अच्छे से दोबारा स्टार्ट कर देनी है। सीरियसली आप पढ़ाई शुरू कर दो, नहीं तो आप एग्ज़ाम में पीछे रह जाओगे। और अगर आपका स्कोर 15 से 17 के बीच में है तो आपकी तैयारी ठीक है, और 17+ है तो आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही है। तो कमेंट बॉक्स में लिखो आपके कितने नंबर आए हैं सेक्शन ए में। फिर सेक्शन बी और सेक्शन सी को आप घर पे सॉल्व करो। और नेक्स्ट कल हम सेक्शन बी के सारे क्वेश्चंस की PDF लेके की वीडियो आपको एक्सप्लेन करेंगे और फिर उसमें से आप अपने आंसर्स चेक कर सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अपने दोस्तों तक शेयर करो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो। इस पे हम बहुत सारे सैम्पल पेपर्स साइंस के करेंगे, और साइंस का अगर आप इस चैनल से जुड़े रहते हो तो आपके एग्ज़ाम में आपको अच्छे नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग साइंस JV।